Hi everyone, we are going to start the chapter Oxygenation Need according to INC syllabus. So these are the topic which we are going to cover. So let's begin with the oxygenation needs review of cardiovascular and respiratory physiology. So this review, we have to write a basic review of cardiovascular and respiratory physiology. So let's start with cardiovascular physiology. Do you know what the meaning of the word physiology? It mainly focuses on the functioning and how it regulates its function, and whereas anatomy refers to structure of or parts of the organ. So let's start with cardiovascular physiology. Structure and function of the heart. We know that it's pretty simple that heart के 4 चैम्बर होते हैं, right atrium, right ventricle, left atrium and left ventricle. And valves, do you know what the function of valves? They prevents black flow that mainly include tricuspid, bicuspid valve. Bicuspid is also known as mitral valve. So these are both are same, pulmonary valve and aortic valve. Now let's start with cardiac cycle. Cardiac cycle is the sequence of events that occur in the heart during one complete heartbeat. ये sequence of events होते हैं जो हार्ट में occur होते हैं एक कंप्लीट करने के लिए एक हार्टबीट के लिए, जो कि मेनली इन्वॉल्व करता है कॉन्ट्रैक्शन दैट सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन दैट डायस्टोल or both atrial and ventricle, which together ensure blood is pumped throughout the body. Means contraction and relaxation leads to cardiac cycle completion, and it includes 3 phases, that's arterial systole, ventricular systole and diastole. So let's see what is arterial systole. Arterial systole, आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करती है जिससे ब्लड वेंट्रिकल्स में जाते हैं, ये आर्टियल सिस्टोल है. एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल्स में पंपिंग ब्लड इनटू अरोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी. वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो हमारे वॉल्व्स ओपन होते हैं, विच वॉल्व विल बी, नीचे वाले वॉल्व ओपन होंगे, आर्ट्रियल में ऊपर वाले होंगे. सो लेट्स सी, वेंट्रिकुलर में वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करता है जिससे ब्लड जो है पंप करता है इनटू द अरोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी. एंड इन डायस्टोल, आर्टरी एंड वेंट्रिकल रिलैक्स, बोथ आर्टरी और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स कर जाते हैं जिससे हार्ट क्या करता है, चैम्बर फिल करता है ब्लड अगैन. सो इन आर्टियल सिस्टोल जो हमारे राइट साइड में होता है ट्राइकस्पिड, वो क्लोज होता है फॉर रिमेम्बरिंग, जैसे ट्राइकस्पिड, इट्स ट्राइकस्पिड TRI, तो उसमें R आ रहा है तो राइट साइड मीन्स ट्राइकस्पिड हमारा वो हो जाएगा, ओपन हो जाएगा. एंड लेफ्ट साइड में हमारा बाइकस्पिड ओपन हो जाएगा जिससे ब्लड क्या पुश करेगा इनटू वेंट्रिकल. एंड हमारा जो सेमिलुनार वाल्व्स हैं वो हमारे क्लोज रहेंगे इसके बीच. सेमिलुनार वाल्व्स कौन करते हैं, अरोटिक एंड पल्मोनरी. सो दिस वाज अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरिया और फिर ब्लड फिल हो जाएगा. देन वेंट्रिकुलर सिस्टोल विल टेक प्लेस एंड देन डायस्टोल विल टेक प्लेस. एंड लब डब इज़ प्रोड्यूस इन दिस ओनली, जब एवी वॉल्व्स हमारे जब क्लोज होते हैं तो हमारा फर्स्ट साउंड सुनाई देता है, और जब हमारे सेमी लूनार वॉल्व्स क्लोज होते हैं तो हमारा सेकंड साउंड दब सुनाई देता है. Then stroke volume is the amount of blood pumped out by one ventricle of the heart in a single heartbeat. Means stroke value वो amount of blood होता है जो कि pump करता है एक ventricle से in a single heartbeat. In a healthy adult, stroke volume is 70 ml of blood per beat. Since both ventricle pumps almost the same amount, we usually talk about the left ventricle, क्योंकि जो दोनों हमारे ventricle होते हैं वो same but blood pump करते हैं, so we usually talk about left ventricle जब हम स्ट्रोक वैल्यू मेज़र करते हैं. सो लेट्स सी, अगर हमारा हार्ट बीट करता है 70 टाइम पर मिनट और पंप करता है 70 ml ऑफ ब्लड, सो वी सी विद ईच बीट्स कितना कार्डिक आउटपुट इनटू हार्ट रेट. जस्ट कार्डिक आउटपुट कैसे निकालेंगे इसका, तो हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, जिसे 75 इंटू 70 करेंगे जिससे 5250 लीटर ml प्लस मिनट आएगा, जिससे हमारा 5 लीटर निकलता है. दिस मीन्स दैट our heart pumps about 5 liters of blood every minute. So we discussed about stroke volume and cardiac output. Let's now begin with electrical activity of the heart, how impulses are transmitted to the heart. So it mainly done in 3
स्टेप्स, सो मेन आर 3 स्टेप्स, दैट्स एसए नोड। साइनो एट्रियल नोड को हम नेचुरल पेसमेकर भी कहते हैं, जो कि लोकेटेड इन द होता है राइट एट्रियम में। ये प्रोड्यूस करता है, फर्स्ट ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इसलिए इसको नेचुरल पेसमेकर भी कहते हैं। इम्पल्स यहीं से स्टार्ट होती है। दिस इम्पल्स मेक्स द आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट्स ए सिंगल, और जिसकी वजह से आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करती है एंड पुश ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स। एंड आफ्टर दैट एवी नोड्स आर्ट्रियोवेंट्रिकल नोड्स एक्ट्स एज अ गेट कीपर, जो क्या करता है, स्लो करता है डाउन द इम्पल्स, so the ventricle get time to fill with the blood before contracting. And then we proceed with bundle of His. ये कैरी करता है इम्पल्स को एवी नोड से सेप्टम तक। एंड देन बंडल ब्रांचेस के बाद हमारा क्या है, परकंजन फाइबर्स, जो कि बंडल ब्रांचेस तो लेफ्ट और राइट साइड पे इम्पल्स को वो कर देते हैं, ट्रांसमिट कर देते हैं। एंड बर्कंजिन फाइबर्स वेंट्रिकल्स को इम्पल्स सेंड करते हैं, जो कि वेंट्रिकल्स को स्टिमुलेट करता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। So in short, bundle of His and Purkinje fibers spread impulse from ventricle contraction. Now we will be seeing ECG. ECGs are the waves that represent the contraction, how the heart is contracted. So it mainly involve PQRS complex. So P valve stands मतलब क्या डिनोट करता है, atrial depolarization, and QRS complex show करता है ventricular depolarization, and T wave shows ventricular repolarization. सो इन सिंपल लैंग्वेज इफ वी सी, पी वेव जो करता है आर्ट्रिया को स्क्यूज करता है ब्लड इनटू वेंट्रिकल, एंड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या करता है, वेंट्रिकुलर पंप ब्लड टू लंग्स एंड बॉडी इन क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, एंड इन टी वेव वेंट्रिकल गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट बीट. So this was easy language for PQRST complex. So we can see P wave arterial skews करता है blood किसमें, into ventricles. सॉरी आर्ट्रिया, इट्स हियर स्टैंडिंग आर्ट्रिया. आर्ट्रिया मीन्स आर्ट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ब्लड हमारे वेंट्रिकल्स में जाएंगे, जिसकी वजह से QRS कॉम्प्लेक्स में वेंट्रिकल पंप करता है ब्लड टू लंग्स और बॉडी, और जिससे वेंट्रिकल जो है हमारा टी में गेट रेडी फॉर हो जाता है नेक्स्ट बीट. देन अगेन पी से स्टार्ट होगा, आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगी, वेंट्रिकल में भरेगा, एंड देन वेंट्रिकल्स सप्लाई करेगा ब्लड लंग्स एंड बॉडी को, एंड टी वेव में वेंट्रिकल गेट रेडी फॉर नेक्स्ट बीट. सो आई डोंट होप कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, एंड इफ़ यू हैव देन डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल आंसर इट इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी टॉपिक. सो लेट्स नाउ सी ब्लड प्रेशर एंड सर्कुलेशन. इन फिजियोलॉजी वी हैव seen the structure and function of the heart, electrical activity of the heart, and now we are proceeding towards blood pressure and circulation. So what is blood pressure? So if we mainly see its cardiac output into peripheral resistance. Normal range 120 से 80 mg होता है, बट इफ़ वी सी इन डेप्थ, वैसे अगर ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन में मेनली अगर पूछा जाता है तो अगर जितना मैंने बताया है उतना आप लिख दोगे तो बहुत इनफ हो जाएगा. एंड दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू टेक इन शॉर्ट बिकॉज मतलब बेसिक आई एम टेलिंग यू, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं, एंड दीज आर द मेन पॉइंट्स. सो ब्लड प्रेशर, लेट्स सी ब्लड प्रेशर. So blood pressure is the force of the blood pushing against the wall of artery when the heart pumps. Think like the pressure of water inside the pipe. So this line is mainly tried to take वो force जो कि blood push करता है wall of the artery में जब heart pump करता है. So what is blood pressure? जो वो force जो कि blood push करता है against the wall of arteries when heart pumps. जब हार्ट पंप करता है तो वो ब्लड रश होके आता है, तो उससे जो आर्टरीज पे जो प्रेशर पड़ता है उसे हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं. मेनली इसकी 2 रीडिंग्स होती हैं, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर. सो सिस्टोलिक प्रेशर अपर वो होता है, अपर नंबर होता है. मेनली बीपी जो होती है 120/80 mmHg होती है. सिस्टोलिक प्रेशर व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है. नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 mmHg. डायस्टोलिक प्रेशर व्हेन द हार्ट रिलैक्स, जब हार्ट रिलैक्स हो जाता है तो उसे हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, और इसका नॉर्मल रेंज होता है 80 mmHg.